Hello students, today we discuss the third part of stereochemistry. So we start from the racemization. So what is meant by the racemization? Simply the process of converting a optically active compound plus or minus into a racemic mixture means the combination of plus minus is called as a racemization. So if you have two optically active compounds, एक है plus एक है minus, so दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, so we have a combination of plus minus. So जो वो combination है, that combination is called as a racemization. So actually इसमें होता क्या है? The process of racemization involves the conversion of half of its dextro form into levo form, so that the mixture is optically inactive due to the presence of equal amount of the two enantiomer. So जो पूरा एक डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल है उसका जो हाफ फॉर्म है वो लिवो में कन्वर्ट हो जाएगा and we have a mixture of dextro plus levo, so that mixture becomes the optically inactive due to the presence of equal amounts of two enantiomer. So simply अगर आपको racemization समझना है, so ये बात ध्यान में डाल दो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू enantiomer इज कॉल्ड एज अ racemization. सो अगर दो enantiomer एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ racemization. अब जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन इज टोटली अपोजिट विद द racemization. सो मतलब racemization में हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर बनाते हैं enantiomer का, बट रिजोल्यूशन में उससे उल्टा होगा, हम मिक्सचर को टू enantiomers में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको सेपरेट करेंगे. सो racemization एक कॉम्बिनेशन हो गया, बट द रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ सेपरेशन. सो हम देखते हैं कि व्हाट इज रिजोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ racemic mixture into its two pure enantiomer is called as resolution. कि अगर कोई racemic mixture है उसको अगर हम सेपरेट करते हैं into a two pure enantiomer, that method is called as a resolution. So simply अगर प्लस माइनस है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस, उसको प्लस एंड माइनस में सेपरेट करना, तो enantiomer को अलग करना, उसको ही हम कहेंगे resolution. So there are several methods of resolution. Like we have one mechanical method, next one biochemical separation method, third one chemical method, fourth one chromatographic adsorption method, and the last one is the kinetic method. अब इन सब में सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होते हैं दैट इज द केमिकल मेथड. सो हम केमिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल केमिकल मेथड को यूज करके दो enantiomer कैसे सेपरेट होते हैं. सो दिस केमिकल मेथड इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट diastereomer have different physical properties. So हमें पता है कि मिक्सचर है enantiomer का, the enantiomers having a same physical properties, but they are diastereomer having a different physical properties. अगर किसी भी दो आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अगर किसी आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम एक सुटेबल मेथड यूज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो एक बात ध्यान में रखो, enantiomers having same physical property but the diastereomer have different physical property. So इस सेपरेशन मेथड में कौन कौन सी स्टेप्स है वो हम देखेंगे. पहला देखो, the racemic mixture is treated with an optically active reagent which can easily react with enantiomer in the mixture so that a pair of diastereomer is obtained. इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मिक्सचर ऑफ enantiomer है which is racemic mixture, उसको हम ट्रीट करेंगे विद अ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट जो इजीली रिएक्ट हो जाएगा enantiomer के साथ, और वो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट enantiomer के साथ रिएक्ट होने के बाद
it is converted into the pair of diastereomer which is having a different physical property. मतलब हमने क्या किया है, a pair of enantiomer को a pair of diastereomer में convert कर दिया by reacting a pair of enantiomer with optically active reagent. Second में, the diastereomer can be easily separated by some physical method like fractional distillation, fractional crystallization, chromatography, etc. क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि the diastereomer having different physical property, so एक suitable method use करके हम उस pair of diastereomer को अलग कर सकते हैं. तो हम एक तो use करेंगे fractional distillation, fractional crystallization और chromatography method. After that, each of the diastereomer is treated with suitable reagent to generate the enantiomer. क्योंकि सेपरेट होने के बाद तो हमारे पास डायस्टेरोमर है और हमें क्या चाहिए, प्योर इनैंशियोमर ना. तो बाद में जो डायस्टेरोमर सेपरेट हो चुके हैं वो ट्रीट होंगे विद सुटेबल रिएजेंट टू जनरेट इनैंशियोमर. सो फाइनली हमको ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर्स मिल जाएंगे. सो स्टेप बाय स्टेप क्या है, वी हैव अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द पेयर ऑफ डायस्टेरोमर. देन द पेयर ऑफ डायस्टेरोमर इज सेपरेटेड इनटू अ respective diastereomer, and then respective diastereomer is reacted with the suitable reagent to give the optically active enantiomer. This is called as a chemical method for resolution. Suppose we have a D and L acid which is the racemic mixture, combination of D acid and L acid. अब ये रिएक्ट हो गया 2D बेस के साथ जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और वो रिएक्ट होने के बाद वो डायस्टेरोमरिक पेयर बनाएगा जैसे D acid D बेस एंड L acid D बेस. अब उसको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो D acid D बेस अलग हो जाएगा, L acid D बेस अलग हो जाएगा, जो प्रॉपरली रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके हमें इनैंशियोमर्स वहां पे मिल जाएंगे. हम यहाँ पे देखते हैं, वी हैव अ रैसेमिक मिक्सचर प्लस माइनस, इसको हमने कहा A, which reacts with the optically active reagent B minus. अब ये इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके पेयर ऑफ डायस्टेरोमर बनाएंगे जैसे प्लस माइनस AB, माइनस माइनस AB. दिस इज पेयर ऑफ डायस्टेरोमर. नाउ दिस पेयर ऑफ डायस्टेरोमर by using any physical method is separated into the respective diastereomer. कि ये प्लस माइनस AB अलग हो गया, माइनस माइनस AB अलग हो गया. तो ये अभी पेयर ऑफ डायस्टेरोमर नहीं है, ये अलग डायस्टेरोमर है, ये अलग डायस्टेरोमर है. उसके बाद हर एक डायस्टेरोमर HCl के साथ रिएक्ट होता है और HCl के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें एक प्लस A मिल जाएगा जो इनैंशियोमर है और एक माइनस A मिल जाएगा जो भी इनैंशियोमर है. So देखो plus minus A is finally converted into plus and minus. So this is the combination of enantiomer, and by using a chemical method, this pair of enantiomer is converted into the respective enantiomer plus and minus. This is called as a chemical method. हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे R acid and S acid is the pair of enantiomer which reacts with S base जो है ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट. रिएक्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होंगे इनटू अ पेयर ऑफ डायस्टेरोमर जैसे RS सॉल्ट प्लस SS सॉल्ट. तो ये पूरा का पूरा क्या है, इट इज द पेयर ऑफ डायस्टेरोमर. नाउ दिस डायस्टेरोमर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. सो हमने फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर ली तो दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे इनटू RS सॉल्ट एंड SS सॉल्ट. तो ये अलग डायस्टेरोमर है, ये अलग डायस्टेरोमर है. आफ्टर दैट दे रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्ट होने के बाद हमें मिल जाएगा R एसिड और इधर S एसिड. सो पहले जो कॉम्बिनेशन था R एसिड एंड S एसिड का, आफ्टर यूजिंग अ केमिकल मेथड हमें एक R एसिड अलग मिल जाएगा एंड S एसिड अलग मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन, और इस रिजोल्यूशन के लिए हमने एक जो मेथड यूज की है दैट इज द केमिकल मेथड.